Good morning, all of you, and welcome to the 10th episode of Pathik Tales. It has been an exciting journey till now, and we have had various Pathiks coming here and sharing their tales. We have had students, we have had employees, we have had entrepreneurs. And what a contrast! What a contrast because last Sunday we had Dr. Chandrasekhar Dhawan, who is a pediatrician, and then he went on to discover his own diet because he had his own uh, personal uh, health issues and how he had become overweight and what prompted him to find out his diet, and he became an expert dietitian and today is helping thousands of people, and then how he transformed into a developer, a real estate businessman, and how he has prospered through that journey, and how he is looking forward to a project which is absolutely worth around $500 million. So that's an a new level altogether. And today we have yet another person who is starting the journey. So the guest we have today, my dear friends, is the person who is been an employee throughout his life and had an urge always to become an entrepreneur. So he's starting his journey as an entrepreneur. He's already started his journey as an entrepreneur, and now he has to scale his heights. So we have had all spectrum of people in Pathik, and so today we have this person who started this journey. Uh, Throughout his life, he has been working as an employee, and he says, "I have always had this urge of wanting to be an entrepreneur, but never had the guts to take the jump." And finally, he did, and I don't know whether it's fortunate or unfortunate, but as he started his journey, the lockdown started, so there was a new challenge in front of him. So we are going to hear how he got into this journey, what gave him the courage to actually give up his security for so many years, give up his job, and then jump into the ship of entrepreneurship, and how is the ship sailing today. So let's hear all of this from our guest today. But before that, I welcome you all to this 10th episode. My name is Samir Surve. I'm the CEO of Pathik HRD Institute. And I would, all those who are watching, I would urge all of you to share this video with as many people as possible, because let the inspiration flow and let more and more people get inspired to pursue their dreams and live life on their own terms. So with a huge round of applause, all my friends, applause in the sense when we are on online, we don't have an applause, so we have a yo in the chat section. So with a big yo in the chat section, let's welcome our guest of today, the proprietor and owner of Khavayan Se Angan. Khavaya is a person who loves to eat, a foodie, and Angan is a place which is like a courtyard. So Khavayanche Angan is a place where foodies love to come and eat. That's a Marathi name. And so let's welcome the owner and proprietor of Khavayanche Angan, Vibhav Shevde. Vibhav, can you please come on the camera? Good morning, Vibhav. Can you please start your mic? Your mic, your mic is off. We can't hear you. Your mic is off. Yes, now we can hear you. नमस्कार. Namaskar, Yes. and good morning. नमस्कार. आपका Good स्वागत morning. इस Thank you. एपिसोड ऑफ पथिक टेल्स में. It has been an inspiring tale. So, Vibhav, I would like to start a very different question. सबसे अजीब सा सवाल पूछूंगा आपको. आपकी उम्र क्या है? 46. 46. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा because at the age of 46 आपको वो करेज आया, वो गट्स आए, because generally entrepreneurship में young people get into, but at this age of 46, 6. leaving behind a secure job when you've actually settled in life, your mindset is settled, your attitudes are settled. आपने पूछा कि मैं एक entrepreneur बनूं, और आप बन भी गए, और you're sailing through well. तो I would like to start by asking you, Vibhav, कि आप क्या जॉब करते थे और कितने साल तक ये जॉब करते थे? Actually, I am working in CST. तो केमिकल ट्रेडिंग का कंपनी था, Okay. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन और ये लॉजिस्टिक्स का काम था, और स्टॉक
मेंटेन करना था, ये सब काम मैं करता था वहाँ पे। ओके ओके और ऑल ओवर मतलब ऑलराउंडर था वहाँ पे, सब काम अपने को ही करना है, स्टार्ट टू एंड तक, मतलब अप टू फैक्ट्री सेल्स तक, आप ही। फैक्ट्री तक माल पहुंचाना, इतना काम था। ओके ओके। सो क्या आप इस नौकरी में खुश थे? ये अजीब सा सवाल है नौकरी बट। में मतलब खुश, मतलब शुरू शुरू में लगता था कि अच्छा है, टाइमिंग सेट था, फोर्ट एरिया में था, सो वहाँ पे बैंक हॉलीडेज बहुत थे, सो हॉलीडेज अच्छा था, आने जाने का दिक्कत था इतना, लेकिन काम का रूटीन वर्क था, तो ज्यादा कुछ तकलीफ वाला काम नहीं था। बाद में थोड़ा काम बढ़ गया, लेकिन आ, अभी क्या है कि जिस काम में मजा आना चाहिए वो काम मैं नहीं कर रहा था, माइंड में कुछ अलग चल रहा था। ओके ओके। Okay. क्या अलग चल रहा था आपके माइंड में? तो आई एम ऑल्सो ए फूडी, सो उसमें क्या है कि आने जाने का रास्ता जो है, वहाँ पे खाऊ गली करके है यहाँ पे फोर्ट यस। एरिया में, हाँ तो हाँ। वहां से जाता था, घर से नाश्ता न करके निकला था, लेकिन वहां पे भी मैं रुक के, जो स्मेल आता है, सो रुक के मैं नाश्ता करके जाता था। ओके। तो फोर्ट में ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ मैं खाना नहीं खाया है, कहाँ नाश्ता नहीं किया है, सो ओ वाह। एवरी, ओके हाँ, सो 22 साल में मैंने पूरा फोर्ट एरिया जान मारा है, कि किधर ओके खाना नहीं खाया ऐसा हुआ नहीं है। ओके। खाना खाने के आई लिए। लव फूड। हाँ, यू लव फूड। ओके दैट। बेसिकली पैशन था मेरा, ओके ओके तो बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा था, ओके। तो थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ रहा था, बाद में ट्रैवलिंग का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हाँ हाँ। सो माइंड में कुछ चल रहा था कि ये नहीं करना है अपने को, कुछ तो अलग करना है। साल से आप नौकरी कर रहे हो, 22 साल से यू आर वर्किंग, यू आर सेइंग, एंड चलो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई मीन देयर आर मेनी पीपल हु आर फूडीज। खाने को तो बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को लगता है कि मैं उस बिजनेस में चला जाऊं। तो एग्जैक्टली ये आपके दिमाग में ख्याल कब से आने लगे? कितने साल पहले से कि आई शुड क्विट दिस जॉब एंड गेट इनटू फूड बिजनेस? इसका बीज कब रोया गया? एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली एक 10 साल से मेरा एक दिमाग में चल रहा है कि कुछ अपना, अपने कुछ करना है, क्योंकि मेरा शादी होने के बाद बच्चे हो गए, फिर थोड़ा जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ गया, हाँ हाँ तो हाँ। इसकी वजह से मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था कि ये आप चालू करेंगे, स्विच स्विच करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने को नहीं जमेगा, मतलब एक जी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आई थी कि मैं ये सब कर सकूं, जी जी और जी। अभी तक नहीं आया था, एज द एज ऑफ 46 नहीं आया था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं पथिक ज्वाइन किया है, आई कैन डू इट, एक जो कॉन्फिडेंस आता है आदमी को, वो मिल गया है मेरे को। सो 46 की उम्र में ऐसा क्या हुआ विभय कि अभी आपको लगा कि नाउ यू शुड टेक द जंप? बिकॉज जनरली 46 मतलब, आई एम सॉरी बट काफी लोगों को लगता है कि अभी तो ये करियर का सनसेट आ गया है, अब क्या नया करना है, जो राइट, करेंगे राइट, राइट। बच्चे करेंगे। एंड पर्टिकुलरली सिक्योर जॉब्स, और वाकई मैं कहूंगा इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है, बिकॉज हमने देखा है, मैंने मेरे खुद के लाइफ में देखा है कि पीपल हु आर इन ह्यूजली वेल सेटल्ड जॉब्स, मतलब यू नो जो करोड़ों कमाते हैं, हु आर एट द लेवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स, कॉर्पोरेट्स में बहुत सीनियर लेवल पे होते हैं, वो आज इस लेवल पे होते हैं कि आज उनको पैसा इतना मायने नहीं रखता। इवन इफ दे रिटायर, उनके पास काफी पैसा होगा। इन लोगों, ऐसे लोगों को भी वेल सिक्योर्ड जॉब छोड़ के अपना कुछ शुरू करने को बहुत डर लगता है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आपको इस लेवल पे एट द एज ऑफ 46 क्या ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नाउ आई शुड टेक अ जंप? एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद कुछ कोर्सेज थे, लेकिन मेरा ट्रैक थोड़ा अलग हो गया, जहाँ मैं काम करता था वो दूसरी जगह काम करता था, वहां पे एक लड़की थी केरल वाली, सो वो एक्चुअली गांव में चली गई, वो लोग साल में एक बार गांव जाते हैं, तो वहां पे वो चली गई गांव, हाँ हाँ के बाद क्या हो गया, वो वापस आई नहीं, उसकी शादी हो गया, वो आई नहीं वापस। फिर हाँ उसका जो काम था, सेंट्रल एक्साइज का काम था, उसका जो इनवॉइस प्रिपरेशन वगैरह का काम था, हाँ। वो मुझे आ गया, ओके। तो मैंने वो सीख लिया, पूरा एक्साइज का पूरा काम जो रहता है वो मैं सीख लिया। उसके बाद बाकी का रिलेटेड काम भी मेरे को ही आया। बाद में मेरा ट्रैक अलग अलग, मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बजाय मेरे को दूसरा ही काम आ गया, एक्साइज का काम आ गया। उसके बाद में जॉब जो अभी नया मैं अभी 20 से 22 साल जो करता है, कर रहा था, वो भी कस्टम का प्रोसीजर था, उसके पहले का प्रोसीजर है, मतलब इम्पोर्ट प्रोसीजर और कस्टम का काम था। तो मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन वो उधर जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये इसके पहले का स्टेज है। सो उसके रिलेटेड मैंने एक कोर्स किया, ETTI करके एक इंस्टीट्यूट है चर्चगेट में, तो वो नॉलेज लिया मैंने। ओके। तो उसके बाद ये जॉब मेरा थोड़ा
मतलब रूटीन वर्क हो गया कि, लेकिन कोई आएगा नहीं ऑफिस में तो अपने को ही करना है, क्योंकि स्टाफ थोड़ा कम था, ज्यादा नहीं था, तो ऑल पर्पस काम था सब। तो आप बहते पानी की तरह बहते गए और सीखते गए और बहते गए। यस यस यस, डेफिनेटली। मेरा सवाल कुछ और था विभव। मेरा सवाल था हाँ। कि गए 10 साल से आपके दिमाग में था कि यू शुड स्टार्ट समथिंग ऑन योर बिजनेस। कईयों के मन में होता है, इतने साल हो गए, तो 10 साल बाद अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं अभी मुझे कुछ करना ही है? कोई ट्रिगरिंग पॉइंट था, कोई इंसिडेंट था, कुछ हुआ? ट्रिगरिंग पॉइंट मतलब एक शादी होने के बाद बच्चे हो गए, फिर उनका एजुकेशन चालू हो गया, फिर थोड़ा रिस्क लगने लगा कि अरे जॉब नहीं छोड़ना है अपने को, कुछ दूसरा माइंड में कुछ दूसरा चल रहा था कि करना है अपने को, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि इनका एजुकेशन है, फिर फीस, अगर धंधा नहीं चलेगा तो फीस कैसे भरेंगे, इनका बाकी सब कैसा चलेगा, वो थोड़ा स्टेबल माइंड नहीं था, वो प्रॉब्लम था। हाँ, लेकिन ऐसा तो क्या हुआ जिसके वजह से आपने डिसीजन लिया कि अभी नौकरी छोड़ के कुछ करना है? ऐसा कुछ हुआ क्या लाइफ में? मतलब लाइफ में ऐसा हुआ कि गांव में एक अपने थोड़ा प्रॉपर्टी है मेरा, नियरेस्ट टू, आई एम फ्रॉम कोकन, सो गणपतिपुळे इज अ टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ पे थोड़ा अपना प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हमारे मैंगो के ऑर्चर्ड्स है, कैशूज के है, सो वहाँ पे हमारा जॉइंट फैमिली है, हाँ हाँ। वहाँ पे प्रॉपर्टी का भी थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो वो भी अभी आ गया है हाथ में। और दूसरी बात, वहाँ पे कुछ कर सकता है, एग्रो टूरिज्म का कुछ कर सकते हैं, वो दिमाग में था पहले ही मेरा कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे उधर ही जाना है करके, ओके तो ओके। वो माइंड में था, सो उसके रिलेटेड कुछ करना था। लेकिन मैं जब भी इधर घूमने जाता था तो एमटीडीसी करके अपना जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो वो लोग कैसा प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ कैसे सर्विंग करते हैं, कैसा चलता है, वो सब मैं सोचता रहता था। फिर खाने का भी कैसे फूड करते हैं, कैसा मतलब होटल में कैसे बना के रखते हैं, कैसे कैसे सर्व करते हैं, गार्निशिंग कैसे करते हैं, कोर्स किया नहीं है कुछ, लेकिन वो सब दिमाग में था कि यार ये अपने को भी करना है, और नया नया डिश प्रिपेयर करके खुद खाने में और दूसरे को खिलाने में मजा आता था। बेसिकली मेरी माँ जो है वो टीचर थी, तो वो बाहर रहती थी मोस्टली, सो किचन मेरे हाथ में आता था कि ये तुम अच्छा। खाना बना लो ओके आज के दिन। ओके ओके। ऐसा थोड़े दिन बहुत सारा होता था, तो मैं थोड़ा बहुत बना लेता था, तो घर पे आप कुकिंग? परफेक्शन आ गया उसमें थोड़ा आप खाना कुकिंग? बनाने में। ओके, यू आर अ गुड कुक। ओके 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 ओके। सो फिर जॉब कैसे छोड़ा आपने, उसके बारे में बताइए। जॉब छोड़ के तो एक्चुअल शुरुआत कैसे हुई इस बिजनेस की? हाँ, जॉब छोड़ के इस बिजनेस की एक्चुअल शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में बताइए। जॉब एक्चुअली फेसबुक में अपना पथिक का एडवर्टाइज देखा, सो ओके माइंड में कुछ ख्याल आया कि इससे अपना काम बन सकता है, तो ओके मैंने एक सेशन अटेंड किया था उसका, अपना सेंट्रल, अपना इधर बॉम्बे सेंट्रल में, ओके। तो वहां पे फीडबैक फॉर्म लिया, लेकिन फीडबैक में तब तक मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मेरे को फीस थोड़ा ज्यादा लगा कि इतना साल में लाइफ में कभी इतना बड़ा कोर्स किया नहीं था, और फीस भी इतना कभी भरा नहीं है, मतलब कॉलेज का फीस भी इतना नहीं था मेरा, मैं विलेज लेवल पे एजुकेटेड हूँ, तो मैं बोला इतना सब देने का है तो घर वाले तो पैसे देंगे नहीं, अपने को ही देना है, हाँ तो मैं थोड़ा डिसाइड किया कि करने का है, लेकिन बाकी सब खर्चा पानी थोड़ा एडजस्ट करके कर सकता हूँ। तो माइंड में वो ख्याल पहले आया कि अरे इतना फीस है तो कैसे दे पाऊंगा, लेकिन मैनेज हो गया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये अपने को करना ही है। एक सेशन अटेंड करने के बाद, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी हाँ ओके। जी। ये आई कैन तो हियर यू, डिसाइड कंटिन्यू कर लिया कंटिन्यू। कि ये अपने को करना है। एक सेशन अटेंड करने के बाद मेरे को आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ और ये अपने को करना है, तो माइंड में ओके तभी ठान लिया कि अभी आपने को पीछे दिखना नहीं है, तो ओके ओके दिस इज द की, मतलब ये अपने को चाबी अभी मिल गया है, तो आगे करने का है। ओके। सो आपने शुरू में तो आपको आपने कहा कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड के बारे में। चलो आपने पथिक ज्वाइन कर लिया, आपको वहां से इंस्पिरेशन मिला, या आपने आपका डिसीजन हो गया, मैं कहूँगा कि अपने को ये करना है। बट आपको जिस चीज का बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज में शुरू करने से पहले आपने कोई रिसर्च वगैरह कुछ किया? शुरू में क्या दिक्कतें आई आपको? रिसर्च मतलब जब भी मैं होटल में किधर जाता था तभी देखता था कि इंटीरियर कैसा है, खाना कैसे बनता है, वो सब मेरे ध्यान में था, लेकिन इतना कभी सोचा नहीं कि अपना इतना सब खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा अपना आउटलेट से चालू करने का माइंड में था कि किधर तो हम चालू करेंगे,
अपना जो टेस्ट है हाथ का, वो 4 जन खाएंगे तो मालूम पड़ेगा उनको, फिर वापस अपना आराम से बढ़ सकता है, ये दिमाग में आइडिया था। राइट। तो पथिक में मैंने विंसिस करके एक सेशन रहता है, तो उसमें मैंने वड़ा पाव का लिया था, क्योंकि वड़ा पाव ये बेसिक फूड हो गया है, तो वड़ा पाव से मैंने चालू किया था कि लेकिन उससे पहले आई थिंक आपने कुछ, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेम्बर ड्यूरिंग पथिक कोर्स, जब आप कह रहे थे कि आपको जो रिसर्च इंटरव्यूज दिए थे, हाँ, यस यस, तभी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो शायद आपने मुझे कहा था कि पता नहीं मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, बिकॉज जो मैंने रिसर्च इंटरव्यूज किए उन्होंने मुझे कहा कि ये तेरा काम है नहीं। हाँ तो थोड़ा, राइट राइट, आई रिमेम्बर, यस। हाँ, तो उसके बारे एक बार ऐसा हुआ था कि उसमें मैंने इंटरव्यूज लिए थे सब लोगों के, सो उसमें एक अपना CST फोर्ट में कैनन करके पाव भाजी है, हाँ हाँ, सो बहुत साल से फेमस है वो। ओके, मिस्टर दांडेकर करके है, उनको अप्पा बोलते हैं, अप्पा अप्पा दांडेकर, इज हाँ एक्स आर्मी मैन। ओके तो ओके, लंच टाइम था मेरा ऑफिस का, और हाँ लंच टाइम में मैं वहां गया था कि ओके, उनको मिलने गया था एक्चुअली, कि सर ऐसा ऐसा है कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, हम्म, और मुझे जानना है कि आप कैसे काम करते हैं, क्या चलता है, कितने लोग काम करते हैं, कॉस्टिंग राइट कैसा करते हैं, कैसा राइट फूड बनाते हैं, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे माइंड में। तो मैं बोला कि आपको पूछना है, तो मैं राइट, आपको कभी मिलने आऊँ, ऐसा पूछा उनको, मतलब एक्चुअली टाइम लेने के लिए गया था उनके पास, लंच टाइम में, मेरा लंच टाइम था ऑफिस का, हाँ हाँ लंच टाइम में गया था वहां पे, उनको पूछने गया था कि हाँ, मैं कभी आऊँ। राइट, तो मेरे को बोले कि वो एकदम सनकी आदमी निकले, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होंगे। मैं बोला, वो बोले कि मेरे को, देखो भाई, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, हाँ जो भी करना है अभी करो, इसके बाद मैं मिलूंगा, कल मिलूंगा, मेरे को मालूम नहीं है, राइट, आज है, मैं कल नहीं है, हाँ हाँ, मेरा उम्र इतना है, अभी के अभी, जो भी करना है अभी करो। ओके तो ओके, वो माइंड में बैठ गया है, वो खड़े खड़े इंटरव्यू काउंटर पे लिया मेरे को। अच्छा, हाँ, और कॉल्ड यू बोला फिर, मुझे बोले कि आपको क्या करना है, मैं बोला ऐसा ऐसा है सर, मेरे को करना है, कुछ मेरा खुद का चालू करना है। तो हाँ, मुझे बोले, ये आपका काम है नहीं, ऐसा लगता है मेरे को। ओ उन्होंने अच्छा, मेरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया पूरा, ओके ओके, बोले कि ये आपका काम नहीं है, अगर पुलिस वाले से भिड़ना है आपको, गुंडों से भिड़ना है, हफ्ता देना है, ये सब करना है, ये सब आप कर सकते हो, तो ही ये लाइन में आना, नहीं तो ये होटल का लाइन में आने का नहीं। ओ अच्छा, तो उन्होंने मेरा फेस देख के ही मालूम पड़ा कि ये कुछ काम का नहीं है बंदा। तो ओके, मेरे को स्टैम्प मार दिया कि ये कुछ करने वाला है नहीं, सीधा बोल दिया कि आप कुछ करने वाला है नहीं। तो मैं बोला, आपा मैं आऊंगा, करके दिखाऊंगा, उनको ये बोल के मैं वहां से चला गया। बाद में, अभी तक लॉकडाउन चालू है, अभी अभी उनको मिला नहीं है, लेकिन अभी जैसा लॉकडाउन खुलेगा मैं उनको जाके मिलूंगा और बोलूंगा कि मैंने चालू किया है करके। ओके। सो उन्होंने जब ऐसा आपको बोला तो यू गॉट डिस्करेज्ड और यू फेल्ट, नहीं, डिस्करेज व्हाट वाज तो द हुआ था थोड़ा, लेकिन मन में था कि ये करने का ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये करना ही है, और अभी जब भी कोर्स चालू किया था, तो मन में ठान ली कि कुछ करना ही है, अभी तो पीछे नहीं हटना है, कुछ करना ही है। सो तो जैसे आपको ये अप्पा दांडेकर सर ने बोला कि डोंट डू इट, ही डिस्करेज्ड यू, वैसे आपको इंटरव्यू करते समय कोई एनकरेज करने वाले भी मिले? डिड एनीबॉडी एनकरेज यू? किसी इंटरव्यू में किसी ने आपको बोला कि आप कर सकते हो, आगे बढ़ो, ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस आया था? इनकरेज करने में एक्चुअली मेरा वाइफ है, तो ओ वाइफ ने मेरे को बोला था कि ओके, यू आर प्रिपेयरिंग, पाव भाजी तुम अच्छा बनाते हो, अगर पाव भाजी का आउटलेट यहाँ पे नहीं है, तो आप आउटलेट खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा, जंप मिल सकता है, ऐसा बोला उन्होंने। सो माइंड में वो था, लेकिन कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो बहुत नीचे था, क्योंकि उसका बोलने से होता नहीं है, बाकी सब बराबर, चीज भी ध्यान में रखनी पड़ती है, फिनेंस रहता है, जगह का लोकेशन, वो सब रहता है, वो बहुत बहुत टेंशन था एक्चुअली कैसे चालू करने का। तो बाजार में थोड़ा सर्वे किया मैंने, तो वहां पे जो रेंट पे था, तो अफोर्डेबल नहीं था इतना, 40,000 रुपीज पर मंथ, इतना अफोर्डेबल मेरे को नहीं था। तो बोला कैसे स्टार्ट करने का अभी। तो बीच में क्या हो गया कि आंगन में नारियल का पेड़ है, तो वहां पे आपके हाँ, घर मेरे पे? आंगन में नारियल का पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर से जो नारियल का टहनी रहता है वो गिर गया नीचे, ओके, हाँ ड्यूरिंग लॉकडाउन के पहले। हाँ हाँ, सो वहां से गिर गया, तो मेरा शेड था पतरे का, वो टूट गया पूरा।
ओके। तो रिनोवेट करना पड़ा उसको। फिर बाद में मेरा गाड़ी पार्क करने का छोटा जगह है, वो अंदर कंपाउंड में है थोड़ा, उसका शेड भी टूट गया उसकी वजह से। ओके। तो रिनोवेट करना पड़ा। तो रिनोवेट करने के टाइम मेरे को आइडिया आया कि मैं यहाँ से कर सकूंगा ओह अच्छा। अगर, हाँ, तो पैसे अपने बच जाएंगे। ये तो अपने को रिनोवेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टूट गया था, तो घर के सामने ही है तो करना ही पड़ेगा। ओके। तो मेरे को जो ड्यूज थे, हाँ। तो मैं थोड़े इन्वेस्ट इसमें कर दिए घर में, और अभी सब सेटअप कर दिया। ओह तो वाह। मेरा पैसा बच गया, और मेरा अभी फोन पे सब ऑर्डर ज्यादा चलते हैं। सो जो नारियल की टहनी गिर गई वो आपके अच्छे के लिए हुआ। यस यस यस, said डेफिनेटली। the obstacle is the path, so you found a path from there. मतलब बाद में छोटा छोटा आइडिया आते गया कि इधर ये हो सकता है, किधर किचन हो सकता है। फिर वो गैरेज को मैंने कन्वर्ट इनटू किचन, Oh, गैरेज को मैंने थोड़ा विंडो बड़ा करके किचन कर दिया उसको। yeah. So आप हाँ, were telling us about Pathik का Vincis. How did you start? So what was your first order? आपने खाने का पहले कैसे शुरू किया? क्या Vincis लिया? क्या किया? जरा उसके बारे में बताइए। विंचेस में मैंने जो बेसिक फूड रहता है मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव, हाँ, उसका मैंने विंचेस लिया था। हाँ। तो 50,000 पर मंथ उसका ये विंचेस था मेरा। लेकिन आपको वड़ा पाव मतलब एक महीने में 50,000। अर्न करना, ओके। आपको वड़ा पाव सेलिंग का कोई अनुभव हाँ, था? Did you have any नहीं experience? कुछ नहीं था। ओके, लाइफ में कभी वड़े छोड़े नहीं थे कढ़ाई में, कभी नहीं। ओके, ओके। लेकिन मालूम था कैसे करते हैं, मालूम था वो तो कैसे छोड़ते हैं, मालूम था, देखा था, लेकिन किया नहीं था। वो तो बनाने की बात हो गई, मगर इन बिजनेस एज आई हाँ, अंडरस्टैंड प्रोडक्शन समटाइम्स इज मच इजियर। द मेन प्रॉब्लम कम्स इन सेलिंग। बेचना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक एक एक वीक में आपने कुछ आपने खुद ट्रेन में वड़ा पाव बेचे थे, एम आई राइट? यस 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 यस। सो कैन यू टेल अस अबाउट दैट? यू माइंड में थोड़ा फियर रहता है, हाँ, बिकॉज यू आर माइंड में थोड़ा फियर रहता है। और चाकोरी मोड़ा म्हणून एक विंसिस में सेशन था। एक सेशन रहता है अपना यूबीयू ठीक एटीट्यूड, का। यस। हाँ, हाँ। तो हाँ, सो उसमें मैंने वो, मैं दूसरा कुछ क्या कर सकता हूँ सोचा, तो ट्रेन में वड़ा बेच के अपना जो फियर है उसको भगा सकता हूँ। वो मैंने ट्राई किया। साथ में मेरी वाइफ भी थी, तो उसको भी मैंने बोला था कि मेरे साथ में चलो। तो मैंने व्हाइट शर्ट, इस्त्री वाला शर्ट पैंट पहन के, हाँ, कैप पहन के, एप्रन करके पहन के मैं वहां से निकला था करजत से। ओके। ट्रेन में वड़ा पाव बिकने के लिए साथ में वाइफ थी, वाइफ को मैं बोला मेरे साथ में चलो। तो हाँ, शी रिफ्यूज टू स्टे विथ मी। ओके, वो बोली कि मैं लेडीज में बैठती हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा जो काम है तुम करो, मैं नहीं आऊंगी। ओके। उसको थोड़ा शर्म लग रहा था। सो मैं बोला इट्स ओके, मेरे को करना ही है ये, आज नहीं तो कल ये करना ही है। सो वो मैंने कर दिखाया। तो सब फियर था बीच मन माइंड में, सो सब क्लियर हो गया वो कि तो मैं कर आपने क्या सकता हूँ। किया? मतलब सी आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। मैं ये सवाल इसके लिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इसके लिए तो सी देर इज यू हैव टू एक्चुअली एम्ब्रेस एम्बेरसमेंट, आई वुड से, बिकॉज जो आदमी पढ़ा लिखा है, ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसा में उस काम में कुछ गलत नहीं है, इनफैक्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए बहुत करेज लगता है कि इफ यू हैव रियली पैशन टू डू बिजनेस, यू शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग, बट दिस रिक्वायर्स अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। बिकॉज यस देखिए, ट्रेन में जाके यूबीयू एटीट्यूड में आई हैव सीन सेवरल पथिक्स जिन्होंने स्पीचेस दिए हैं, जिन्होंने सोशल मैसेजेस स्प्रेड किए हैं। सो इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, यू नो, डोंट ईट टबैको। यू गो ऑन ट्रेन में, आप जाके चिल्ला चिल्ला के स्पीच दे रहे हो कि आप टबैको मत खाओ। लोग अजीबोगरीब नजर से देखते हैं आपके पास, बट आपने एक कदम और आगे चले गए कि आप कुछ बेच रहे थे, यू नो। एंड पर्टिकुलरली जिस आदमी को कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो ट्रेन में जाके बेचेगा, बात अलग है। बट आई थिंक यू आर एजुकेटेड मैन, यू हैव डन अ जॉब फॉर 22 years, सो यू नो, शायद लोगों को ऐसे लगेगा कि अरे अभी इसकी इतनी नौबत आ गई कि ट्रेन में इसको वड़ा बेचने का टाइम आ गया। ऐसा ऐसे कई कई ख्याल हमारे मन में आ सकते हैं। सो उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था और आपने एग्जैक्टली क्या किया? आई मीन, डिड यू टेक द वड़ा पाव एंड सिंपली स्टार्टेड, आपने चिल्लाना शुरू किया कि वड़ा पाव खरीदो? क्या किया आपने एग्जैक्टली? आई वुड लाइक टू नो। नहीं, मैं बहुत अभी भी क्यूरियस हूँ। एक्चुअली मेरे को माइंड में आया था कि हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन सेल करना इतना इजी नहीं है। यस। वो तभी मेरे को मन में आया कि इट्स नॉट इजी। ट्रेन में हम लोग देखते हैं कि वो पेन बेचने वाला रहता है कि भाई हाँ, साहब ये हाँ, सो एंड सो कंपनी का पेन है, इतने में है,
एक के ऊपर एक फ्री है, वो जो ऑफर देते हैं। सो मैंने वो देखा था, लेकिन आपको अगर पेन लेने को बोलेंगे और बोलेंगे जाओ बेच के आओ, तो नहीं होगा बोलने को। वो एक्सपीरियंस था, वो मैं माइंड में था कि अरे ये अगर ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, और अपने को ये पेट के लिए करना ही है। वो माइंड में था, वो हिसाब से मैंने आगे कुछ सोचा नहीं। 1-2 बार पहले शर्म लगा, बाद में कुछ शर्म नहीं है। पर आपने क्या किया, मतलब आपने चिल्लाना शुरू किया वड़ा पाव खरीदो, एग्जैक्टली आपने बेचा कैसे? एग्जैक्टली बोले तो मेरे हाथ में एक थैली था, थैली में एक डब्बा था स्टेनलेस स्टील का, उसमें वड़े थे, साइड में पाव रखे थे, बाद में एक चटनी का डब्बा, और बाद में मैंने क्या किया, पहले ढक्कन खोल दिया, अंदर जाके पहले ढक्कन खोल दिया। तो ढक्कन खोलने के बाद वो स्मेल आता है वड़ा का, महक आ गई। सब लोग पूछ रहे क्या है भाई क्या है। तो वो आइडिया मैंने किया। सुबह सुबह ठंडी का मौसम है तो स्मेल आता ही है। तो अपना भगवान ने अपने को 5 दिन दिए, भगवान ने अपने को 5 दिन दिए, पंचेंद्रिय बोलते हैं उसको। यस यस, ईयर्स, नोज, आईज, हाँ यस। तो स्मेल काम कर गया मेरा। आधा काम तो उसने कर दिया कि ये पास आ रहा है, सुबह सुबह नाश्ता है 6 बजे, 6:30 बजे कोई वड़ा रेडी नहीं रहता है, लेकिन मेरे पास वड़ा रेडी था। सो मैं लेके गया, ढक्कन खोल दिया सीधा। 6:30 इन द मॉर्निंग आप गए थे? अर्ली इन द मॉर्निंग, यस। 6 बजे गए थे? 6:30। So that's wonderful. I think this is a wonderful sales strategy कि आपने टाइमिंग बराबर पकड़ा, गरम गरम वड़े आप ले, कितने वड़े आप लेके गए थे? कितने वड़ा और पाव लेके गए थे आप? 50 and you were able to sell all? Yes. कितना टाइम लगा 50 वड़ा पाव बेचने को? Almost up to Bombay Central. मतलब 2 hours. Okay, 2 hours. This is my first experience. This was your first experience. You were coming to the class? Yeah. क्लास को आ रहे थे? Oh wow, okay. So पथिक क्लास को जब आ रहे थे, on the way you sold this. So this is really superb. So my trainer used to always tell me, you know, he always told me that, you know, you should always focus on being a good trainer, because he said कि सही जो अच्छा हीरा होता है ना, उसको बेचने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप चमकता है, and you attract people. So I think that is what you did with your vadas. I thought कि, you know, you'll have to sell कि चलो वड़ा पाव लो, but आप तो बोल रहे हो आपने इतने मस्त बनाए और उसकी महक से ही लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित हो गए और उन्होंने आपका वड़ा पाव खरीदा. This is brilliant. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था. I really wanted to know कि how did you sell? और I was imagining, even in the class when you told, you know, मैंने बेचा, I was imagining कि विभव must be shouting कि, you know, आपने कितने में बेचा एक वड़ा पाव? हाँ? आपने कितने में बेचा एक वड़ा पाव? What was the 12 price? rupees. 12 rupees. हाँ, so 10 का वड़ा पाव, 10 का वड़ा पाव. I was imagining something like that कि उन्होंने ऐसा किया होगा, वड़ा पाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. And I still remember we had discussed this in the class. I had told you to do this because I wanted that you should get rid of that embarrassment, and you should really know what it means to sell. And this is the crudest and the most raw way to sell. And if you could do this, I was sure that, you know, आगे आप अपनी राह ढूंढ ही लोगे. So it was really a big win. And फिर आपने 50,000 रुपीस का वो जो विंसिस लिया, तो विंसिस में क्या हुआ विभव? आगे क्या हुआ? आगे स्टोरी बताइए. विंसिस में एक्चुअली वड़ा पाव सेल तो था, लेकिन उसके बाद मेरे को बाकी सब ऑर्डर थे, मतलब पाव भाजी के ऑर्डर्स थे, टिफिन सर्विस चालू था, तो टिफिन के भी ऑर्डर्स आने लगे. उसमें थोड़ा ग्रोथ हो गया, मतलब ये सब करने का है अभी, रिलेटेड, इट्स रिलेटेड टू फूड. तो काउंटर सेल होना चाहिए, वो होने लगा. घर पे फोन पे ऑर्डर आने लगे कि ये मेरे को इतना वड़ा पाव चाहिए. सो मैंने एक पैम्पलेट बीच में सर्कुलेट किया था कि 20 मिनट्स में डिलीवरी देंगे वड़ा पाव का. ओके. तो थोड़ा बहुत काम कर दिया उसने. और मोस्टली मेरे माँ एक्सपायर होने के बाद मेरे को थोड़ा वो ख्याल आया कि सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करना है सर्विस मोस्टली. क्योंकि जो चल नहीं सकते, जिनको घुटनों का दर्द है, वो उतर नहीं सकते जीने से, तो वो प्रॉब्लम था, तो उनको सर्विस देना है. 1-2 जगह मेरा टिफिन, वाइफ के टिफिन चालू थे मेरे. अच्छा. तो हम लोग टिफिन वहां करते थे, क्योंकि वो अबो 80 एज है उनका. तो 2 कपल ऐसे थे कि अबो 80 एज है. अबव 80 एज है. ओके. तो उनको प्रोवाइड करना, तो वो आइडिया मेरे को वहां पे आया कि इनको हम वड़ा पाव खिला सकते हैं, घर पहुंचा के वड़ा पाव दे सकते हैं. राइट. तो फोन पे ऑर्डर का मैंने चालू कर दिया फिर. So that is phenomenal, because I think then you are a true Pathik, because हम Pathik में कहते हैं move from problem solving and convenience mode
to learning and contribution mode. So definitely आपने अपने job का convenience छोड़ दिया, and you came on a learning mode when you started a business. But now that you are saying, जब आप बोल रहे हो कि आपने senior citizens को service देने का सोचा, so you really went on the contribution mode, and we are really really proud of you. Because see, जब आदमी अपने नया बिजनेस शुरू करता है तो पहले वो अपने बारे में ही सोचता है और कहता है मेरी मुसीबतें क्या कम है क्या, कि मैं पहले मेरी मुसीबतें समझाऊं, लेट मी गेट सेटल्ड एंड देन लेट मी डू सम काइंड ऑफ सोशल वर्क. बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कंट्रीब्यूटिंग व्हाइल यू आर डूइंग दिस, दैट्स रियली रियली फिनोमिनल. तो जगह की दिक्कत आपने बखूबी you solved the problem by using your own space. And at the end I think I will show them the photographs. I have a few photographs of. Yeah, It's thank you, thank you. a beautiful thing. It's Definitely. वो बहुत रस्टिक फील आता है, जैसे गांव में, विलेज में आता है. ये आपका है कहाँ? वेयर आर यू एग्जैक्टली लोकेटेड? ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कर्जत, बॉम्बे पुणे के बीच में कर्जत करके आता है. लोनावाला के पहले कर्जत स्टेशन है. कर्जत में देवली करके गांव है. अच्छा, वहां पर विदिन 1 किलोमीटर है वहां से. सो बहुत वहां पे अपना, when I show the photographs, people will understand. Yeah, definitely. Very good and it's very very nice. So जगह की दिक्कत हो गई. I think आपके जो जॉब से ड्यूज आ गए, उससे आपने फाइनेंस के ऊपर भी I think that's how you financed your business. और कोई challenges आए आपको इसमें? Any other challenges you faced? चैलेंजेस मतलब लाइसेंस का थोड़ा चैलेंजेस था, लेकिन ये सब मालूम नहीं था प्रोसीजर कैसा है क्या है. थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन वो भी सॉल्व हो गया. 10 जन थे हेल्प करने के लिए, फ्रेंड्स थे, उनसे बात किया कि ये सब करना है. बाद में कॉम्पिटिटर तो है, लेकिन मैं सोचता नहीं है उनके बारे में. अपना खुद का रास्ता से चलना है, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है. फूड बिजनेस में तो आई डोंट थिंक यू शुड. हाँ, तो इतने खाने वाले लोग हैं इस दुनिया में, आपके जैसे खवैये बहुत है इस दुनिया में. सो नहीं बहुत है, वो आएंगे, जरूर आएंगे. एक बार खाना खा लिया तो आएंगे, जरूर आएंगे. यस यस यस. 4-5 फैमिली ऐसे हैं, 5-6 फैमिली है जो मेरे डेली मतलब रूटीन कस्टमर हो गए, रिपीट कस्टमर्स. तो ऑलवेज फोन कॉल करके ऑर्डर देते हैं. वीकेंड को मोस्टली ऑर्डर रहता ही है उनका. आला कार्ट ऑर्डर रहता है उनका. ओके. सो विभव, ये एग्जैक्ट शुरू कब हुआ आपका? पथिक कोर्स कब एंड हुआ? जैन 2020 में आपका पथिक कोर्स एंड हुआ. आपने इमीडिएटली तो ये शुरू नहीं किया, तो आपने ये कब शुरू किया? मार्च फेब में मैंने कर दिया था. लास्ट डे था मेरा फेब में, 29 फेब को ऑफिस का रिजाइन कर दिया. फिर मार्च में चालू करना था, लेकिन लॉकडाउन चालू हो गया. गुड़ी पाड़वा को मेरा शुभ मुहूर्त करना था. Oh, so the biggest challenge you faced was the lockdown. Yes, बाद में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आने लगा था कि अरे लॉकडाउन कभी खत्म होएगा, कभी चालू करूंगा. नौकरी छोड़ के बैठा था, कैसे करेंगे. फिर डिसाइड कर दिया कि गुरु पूर्णिमा. फिर मेरा यहाँ पे काम चालू था आंगन में, रिनोवेशन का काम चालू था, वो भी ठप हो गया था क्योंकि सामान नहीं मिल रहा था. जो लादी का काम कर रहे थे वो कामगार भी नहीं थे, वो गाँव चले गए थे. वो दिक्कतें थोड़ी आई मेरे को, लेकिन थोड़ा डिले हो गया. फिर गुरु पूर्णिमा का दिन था तो बोला अभी आगे कुछ सोचना नहीं है, लॉकडाउन में ही अपने को शुरू करना है. बैठ के खाली बैठ के तो कुछ होने वाला है नहीं, तो शुरू करना है अपने को. सो मैंने इनविटेशन नहीं दिया था, खाली इंटीमेशन दिया था कि मैं चालू कर रहा हूँ करके. व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स को, बाकी सब लोगों को इंटीमेशन दिया था, नॉट इन्विटेशन कि यहाँ पे आओ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम था, बाकी सब इश्यूज थे. मैं बोला एटलीस्ट पीपल शुड नो कि ये चालू कर रहा है, कुछ तो खाने को मिल रहा है. और इतना बाद में एक दोस्त आया था, उसने मिसल टेस्ट किया मेरा. फिर बोला अरे दादा तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एडवर्टाइज करो इसका. बोला एडवर्टाइज क्या करूंगा, बोलो मेरे को टाइम नहीं है, इधर सब बाकी सब काम है, ये काम है, वो काम है, 10 काम है, तो मेरे को टाइम नहीं है एडवर्टाइज करने को, तुम ही पोस्ट कर दो. तो उसने एक पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे. अच्छा, ओके. तो वो इट वर्क्स. अच्छा, तो बाजार में सब होटल सब बंद थे लॉकडाउन की वजह से. yes. तो मेरा तो आंगन में ही है, घर के आंगन में ही है. पूरा कर्जत आके गया, खाना खा के गया, स्नैक्स सब टेस्ट करके गया. लॉकडाउन में ये रिस्पांस बहुत ज्यादा मिला मेरे को. सो वो फायदा हो गया कि कनेक्शंस बढ़ गए. आने के बाद मैंने रिव्यू बुक, पहले तो ध्यान में नहीं था कि रिव्यू बुक रखने का, फिर मैंने वहां पे रिव्यू बुक रख दिया कि आप बाबा खाने के बाद बोलो कि कैसा लगा आपको, इसमें क्या कमी है, नमक कमी है, तीखा कमी है, ऐसा कम है, वो रिव्यू बुक रख दिया.
बोला आप एटलीस्ट यू शुड फीडबैक लिखो, यस, फीडबैक यू शुड राइट योर नंबर। ओके, तो नंबर लिखने के बाद मेरे पास डेटा आ गया उनका। व्हाट्सएप नॉर्मली 90% लोग यूजेस व्हाट्सएप, यस, तो उनका नंबर आ गया मेरे पास। अभी ब्रॉडकास्टिंग करके उनको मेनू भेजने का मैं करने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं है क्योंकि वी आर वर्किंग ओनली 2 पीपल्स, मैं और मेरा वाइफ। तो हम लोग दोनों बना के खरीद करके लेके आते हैं, बनाते हैं और बाद में डिलीवरी को मैं ही जाता हूँ। मैन पावर अभी मेरे पास है नहीं, सो आगे बढ़ाऊंगा। वो अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा स्कूल भी चालू होंगे, क्योंकि मेरा जो घर है वो ऑन द वे ऑफ स्कूल है। तो स्कूल चालू होंगे, फिर सुबह नाश्ते का थोड़ा काउंटर से ज्यादा बढ़ जाएगा मेरा। ओके, 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 सो दैट्स गुड, दैट मीन्स आपने डिजिटल मार्केटिंग भी किया एंड नाउ यू आर सीइंग हाउ कैन यू मेक यूज ऑफ व्हाट्सएप। तो आपने ये डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप के ऊपर कोई कोर्स किया है क्या? डिड यू डू एनी ट्रेनिंग? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है। सो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरे को करना है, सब जगह करना है। यस, सो दैट्स गुड, दैट मीन्स जैसे जैसे जरूरत पड़ती है आदमी अपने आप सीखते जाता है, व्हिच इज रियली वेरी वेरी गुड। सो प्रमोशन आल्सो इज इम्पोर्टेंट थिंग इन यस, द बिजनेस। ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बट नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी एक तो आई थिंक इन अ वे इट वाज गुड कि इट वाज वेरी राइटली सेड दैट यू बर्न्ड योर ब्रिजेस। आपने पहले की नौकरी छोड़ दी थी, इसके लिए आपको लॉकडाउन में शुरू करना ही पड़ा, या फिर देयर आर मेनी पीपल हु वुड रियली थिंक वेदर टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस ड्यूरिंग लॉकडाउन, आई बट हैव नो चॉइस। you had no choice, so that was really very good, that really helped. But tell me something Vibhav, now you know July, August, September, October 3-4 महीने हो गए, तो 3-4 महीनों में as saying that all this is done by only you and your wife, it's like a one man show, and it's right. I mean कोई भी छोटा business होता है, I remember the time we started Pathik also, it was all a family business. There was a time when Sandhya, me, my brother Sangram, my mother, हम लोग जाते थे और हम ही इंट्रोडक्टरीज को, we were the staff, we were everything, we had no staff. तो आप उस स्टेज पे हो, कभी कभी ऐसे मन में ख्याल आया कि नौकरी अच्छी थी, सुबह उठ के सीधा काम पे जाता था, शाम को घर आओ, अपना पगार लो, अब यहाँ सुबह सुबह उठो, सामान बुकिंग भी करो, प्रमोशन भी करो, खाने के लिए भी जाओ, इतनी सारी दिक्कतें हैं, और इतनी सारी दिक्कतें करके इज दिस रियली वर्थ इट? आपके आपके मन में ऐसा कभी ख्याल आया? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एक्चुअली कभी कभी मन में आता था, लेकिन इसमें क्या है, कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस है। अभी बाहर घूमने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा दिन काम करना पड़ता है। और दूसरी चीज जो है, इम्पोर्टेंट चीज है, आई लव माई किड्स। यस, तो बच्चे को मैं टाइम नहीं दे पाता था जब भी जॉब कर रहा था। तभी सुबह जाता, तभी वो सोए रहते थे, रात को लेट आता था, तभी वो सोए रहते थे। सो ओनली हफ्ते में एक बार मैं उनका मिलना था। हाँ, हाँ, तो नाउ आई गिव देम टाइम, फुल टाइम, मेरे ओ, सामने रहते हैं। हाँ, और वो अच्छा चीज है कि वो जो क्वालिटी टाइम बोलते हैं उसको, हाँ, लाइफ में कभी आता नहीं है, चाइल्डहुड टाइम। राइट, तो राइट। मैं उनको दे रहा हूँ और आई एंजॉय इट। तो लाइफ में वो कभी मिस नहीं होना। So that way, this was a very, very good decision, because at the age of 46, you ऐसा took मेरे को लगता है। you took this decision because आप अभी वो बड़े होने से पहले बच्चों को टाइम दे पा रहे हो, which is a very, very good thing. Otherwise, आपको क्या लगता है? आप 10 साल से सिर्फ सोच रहे थे मुझे ये करना है, अब आप वो कर रहे हो. So are you really happy कर रहे हो आप? otherwise भी लगता है मैंने सही डिसीजन लिया? यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मैं सही डिसीजन लिया है, और थोड़ा लेट लिया है, लेकिन लिया है। डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Yes. अगर लेट लोगे तो भी चलेगा, लेकिन लेना जरूर। Absolutely, I agree with you, because I remember एक इंटरव्यू आपको सपोर्ट करने के लिए, I remember जेफ बेजोस का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, और उस इंटरव्यू में उनको पूछा गया था कि यदि अमेज़न फेल होता तो क्या होता? आई मीन टुडे अमेज़न इज सक्सेसफुल, मगर अगर वो फेल होता तो क्या होता? तो ही सेड कोई दिक्कत नहीं थी फेल होता तो, बिकॉज सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है,
बट कई दिनों से मुझे लग रहा था मैंने ऐसे कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ करना चाहिए, और इनफैक्ट ही सेज कि मुझे कई लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो यही कहा कि ये फेल होने वाला है। बट ही सेड मेरा डिसीजन क्राइटेरिया ये था कि जब मैं 80 साल का रहूंगा, जब लाइफ के इवनिंग में रहूंगा, तब मन में ख्याल जरूर आता, कि तभी मन में आया था कि ऐसा कुछ करके देखना चाहिए। तो मैं हैप्पी हूं कि मैंने करके देखा। इवन फेल होता फिर भी आई वुड हैव बीन प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो मन में आया, मैंने करके देखा, चलो फेल हुआ मेरे हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट आई ट्राइड। बट अगर मैं नहीं ट्राई करता, यस, अगर फेल होता, तो वापस मैं आई वाज अ प्रोग्रामर, तो वापस मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब लेके आई वुड हैव स्टिल सर्वाइव। बट मन में वो शांति रहती कि मन में जो था वो मैंने करके देखा। यदि नहीं करता तो शायद वो मन में हमेशा लगा रहता कि यार वो मन में था, लाइफ में कभी किया ही नहीं। तो आप आज उस कैटेगरी में आ गए हो जो एट दिस एज, बिकॉज आई नो विभव के ऐसे लाखों लोग हैं जिनके मन में ऐसे ख्याल रोज आते रहते हैं कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, मगर वो कभी हिम्मत नहीं बटा पाते और वो नहीं कर पाते। एंड देन व्हाट रिमेन्स इज ओनली रिपेंटेंस के यार वो ट्राई करना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स देन दे हैव, वी हैव ओनली एक्सक्यूजेस टू से कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, इसके लिए नहीं मैं कर पाया, उसके लिए नहीं कर पाया। तो आप उन चंद फ्यू लोगों में से हो जिन्होंने हिम्मत करी है, and today you are living life on your own terms, I would say. I don't know financially, but at least emotionally when you are saying कि आपके पास टाइम है, बच्चों के पास देने के लिए टाइम है, आप घर में रहते हो, आप घर से काम कर रहे हो, and you are working with your wife, that is really a wonderful thing. most important, satisfaction. Satisfaction. Okay, Yes, you have found meaning in your life. yes. That is really 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 important. So I'm now going to ask you a very थोड़ा delicate सवाल, and honestly बोलिए कि नौकरी कर रहे थे तब आप जितने पैसे कमा रहे थे, आप उतने पैसे आप कमा रहे हो क्या? डेफिनेटली नहीं, नहीं कमा रहे हो, लेकिन मैं खुश हूँ, लेकिन आप, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे प्यार से 100% माइंड से कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। और आगे पैसा सब कुछ चीज नहीं होती, इम्पोर्टेंट चीज रहता है। तो आई प्रेफर दैट। नो आई वुडंट से कि वो भी कहने की आपको जरूरत है, और बिकॉज आगे पैसा तो मिलता रहेगा, हाँ, आगे भी मिलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। सो जरूर मिलेगा, डेफिनेटली। absolutely on right track and I appreciate what you're saying because see अभी तो आपने सिर्फ 3 महीने हुए शुरू किया और अब लॉकडाउन है। 3 महीने में if you have come to a conclusion के you are happy and you're finding satisfaction, I think you're on the right track. You're spending time with children, you're looking at the brighter side of things, and business settle होने को time लगता है। मैं तो कहता हूँ कि पहले 3 साल तक even if you break even, यस, still okay, you know, because पैसे कमाने के लिए उम्र पड़ी है। And I mean I always tell when I teach in Business Plus, I always tell not that I am a great businessman but I am very passionate about my work. तो मुझे पहला 1 रुपया कमाने को 8 साल लग गए। 8 साल तक मैं 1 रुपया कमा नहीं रहा था, but I was very happy. And of course later on money came much more than I always any time anticipated. उससे भी ज्यादा पैसा आया मेरे लाइफ में। तो पैसा आते रहता है, बिकॉज मेरे ट्रेनर ने मुझे हमेशा कहा था कि लक्ष्मी इज नॉट गॉड। उन्होंने कहा था लक्ष्मी इज नॉट गॉड। हम इंडियन कल्चर में लक्ष्मी को भगवान मानते हैं, तो इज लक्ष्मी इज नॉट गॉड, योर वर्क इज योर गॉड। आप अपना काम ठीक से कम करते रहो, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। जिस दिन आप अपना काम ठीक से नहीं करोगे तब गड़बड़ होगी। एंड ये मेरा लाइफ का अनुभव है कि whenever I needed money and sometimes I needed lots of money because I had huge loans, अभी तक गड़बड़ हो रहा था, बहुत गड़बड़ हो रहा था, अंदर अंदर बहुत गड़बड़ हो रहा था। होता है, but you should have faith because there are many times in life where you feel you know that things will not work out but they do work out. आज तक मेरे लाइफ मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि पैसा चाहिए या किसी से मांगना पड़ा, पैसा आ गया। और जब नहीं आ रहा था तब मैं मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा था। तो अगर आपका काम ठीक से आप करोगे तो जरूर पैसा भी आएगा, यू विल बिकम रिच एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। आई थिंक हम आपके फोटोग्राफ्स दिखाते हैं लोगों को, लेट्स ट्राई टू शो देम व्हाट यू हैव। So here are the photographs of Vibhav's. So हम यहाँ देख रहे हैं ये I think Angan is the banner here and you have a beautiful courtyard there and looks, yeah, I can see यहाँ पे ये काउंटर भी है and lovely courtyard, lovely courtyard. So आप अपने घर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो and I'm sure the viewers are also liking it if they are seeing this.
So this is really, really, really very good, Vibhav. We are proud of you. So in fact, you know, मुझे एक एड याद आ रही है. वो एक आजकल थम्स अप की एड आती है, पता है? थम्स अप की एड, उसमें आई मीन व्हाट यू हैव फाउंड इज मनी इज येट टू कम, बट यू हैव फाउंड मीनिंग इन लाइफ, यू हैव फाउंड फ्रीडम इन लाइफ, एंड दीज आर द टू थिंग्स व्हिच एवरी पर्सन इज लुकिंग फॉर. आई मीन लोग Yes. बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, एंड आई थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू से दिस बिकॉज हजारों लोगों के लाइफ हमने पथिक में बहुत क्लोजली देखे हैं. You know, it is a training program जहाँ हम लोगों के साथ 3 महीने 1 साल बिताते हैं, and people share everything about their life, right from their income to what kind of pleasure they find in their work. And 90% of people are frustrated in their jobs, and they are looking for something called freedom, which cannot be measured in money. They are looking for something called meaning in life, which cannot be measured in money. And वो आज आप वहाँ बैठे हुए हो, so you are really in a very enviable state today, Vibhav. And thumbs up की एक ad आती है आजकल रणवीर सिंह की, यू नो, कि एक पिरामिड से वो जंप मारते हैं, एंड पैराशूट में उनका पार्टनर कोई इजिप्ट में से मिला हुआ बहुत प्रेशियस स्टैच्यू लेके चला जाता है, एंड कहता है पार्टनर मन बदल गया, एंड ही इज रनिंग अवे. और रणवीर सिंह ही क्लाइम्स अप ऑन दैट पिरामिड एंड जंप्स, और वो पैराशूट में अंदर घुसते हैं, उसको पकड़ते हैं. वो पार्टनर अपना स्टैच्यू को पहले हाथ में लेके संभालता है, तो रणवीर सिंह उसके हाथ में थम्स अप की बोतल लेके पी के बोलते हैं वो तू रख ले स्टैच्यू, तू नहीं समझेगा. तो शायद आप उस पोजीशन में हो जहाँ आप लोगों को बोल सकते हो तू नहीं समझेगा कि मैं आज क्या मीनिंग, क्या सेटिस्फैक्शन, क्या हैप्पीनेस, क्या फ्रीडम लाइफ में अनुभव कर रहा हूँ. एंड दैट रिक्वायर्स ह्यूज करेज, दैट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट ह्यूज करेज. एंड आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू विभव that you took this plunge at this stage. आपने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है, आप अपने फैमिली के साथ हो, you are spending more time with your children and find satisfaction in it. Financial prosperity will come with time, and you will become successful. People are very, very proud of you. Future plans क्या है, विभव? Any future plans you would like to share with the audience? फ्यूचर प्लान्स एग्रो टूरिज्म करना है Okay. at my native place, At your native. रत्नागिरी. Okay. It's near गणपतिपुळे, seashore है. हाँ. It's a pilgrimage Okay. place. Okay. गणपति. Wonderful. That's superb. So that means we are seeing a growing entrepreneur who has a big vision as well. Yes. So आपने जहाँ जैसे यहाँ इस्तेमाल किया, you're going to let's hope that you become a big entrepreneur, and one day we again approach you for your interview. Definitely. Okay, for that, and we will be extremely proud of you to have done that. So here's a person who had a job, who has a big vision, and who has taken great step towards his vision. Vibhav, we wish you all the very, very best in your journey ahead. Thank you, Samir. And I hope you do very well. All our good wishes are with you. So friends, with this, we have finished yet another wonderful episode, and here is Vibhav, who has taken this huge jump of jumping towards his dream. Yes, Samir, 1 minute. Go ahead. बोलिए. एक मेरा दोस्त है पथिक, योगेश तांबे. Yes. So he is the man. He is also my guru. तो जब भी मुझे कुछ दिक्कत होती है तो मैं उसको कॉल करता हूँ. He is also पथिक. Okay. Yes. वो उसका नाम मैं लेता हूँ क्योंकि, और मिस्टर सुयोग जोशी वो भी है. Yes. लेकिन उनसे कभी मिला नहीं हूँ अभी तक, तो उनको भी मिलूंगा एक बार, जो लास्ट में इंटरव्यू हुआ था उनका. Right. लास्ट वीक में. Yes. तो योगेश तांबे करके है, तो मेरा दोस्त ही हो गया अभी, क्योंकि मुझे कुछ ये फील्ड में दिक्कत आती है, क्योंकि मैं तो ये फील्ड में नया हूँ. Yes. मुझे कुछ दिक्कत आती है तो मैं उसको जरूर कॉल करता हूँ कि भाई ऐसा है भाई, कुछ उसका सॉल्यूशन बताओ. Yes, mentors are very important, and Yogesh is a Pathik, and Yogesh, in fact, आप जो Pathik प्रोग्राम में आते थे तभी जो आप स्नैक्स खाते थे, that were always supplied by Yogesh. Yes. So I asked Mangesh also कि ये कौन बनाता है, और जब भी मैं आता हूँ तो वहाँ टिफिन देता था इतना बड़ा. Yes. तो मंगेश को मैं पूछता था कि ये कौन लेके आता है. So उसने मेरे को रेफर किया था कि अपना एक पथिक है योगेश करके, from Girgaon. So मैं उसको मिल के आया. Very accomplished caterer. He's himself, yes, and he's a mentor to you. I'm really, very happy. I hope Yogesh हमारा इंटरव्यू देख रहे होंगे and सुन रहे होंगे. I think योगेश भी आजकल गांव में ही है, and he's moving towards that step now. वो एग्रो टूरिज्म कर रहे हैं अभी,
उनकी जगह है, ये शिफ्टेड हाँ, हियर। यस, यस, दापोली में। यस, दापोली में। सो जो आप यस, करना चाह रहे हो या योगेश ऑलरेडी कर रहे हैं, सो यस, यस। दैट्स योर नेक्स्ट स्टेप। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। ओके, आई होप योगेश यू आर लिसनिंग टू अस। So with this, ladies and gentlemen and friends, we are almost at the end of this 10th episode. Next Sunday we'll come with yet another Pathik to share his or her success story about Pathik Tales. And this was really a brave Ayagindik who started the business in lockdown and who is settling down in lockdown and who is putting up not only a brave fight but a happy fight along with his family. So we wish Vibhav all the very best and see you next Sunday. So this is Samir Surve signing off. If you have liked this, you can watch this also on YouTube on our channel Pathik HRD Institute. Yeah, there are so many other videos there. The previous episodes are also there. You can like and subscribe if you like to that channel. And please share this with as many friends as you can. Thank you so much. And Vibhav, thank you very much. Thank you. Thank you, Samir. Yeah. Thank Bye. you. Bye-bye. Take care.